yesterday we covered RBI Act. Today time is to discuss Banking Regulation Act. So these two acts, as we discussed earlier, are the primary regulations that govern banking in India, right? So Banking Regulation Act 1949 actually originated before 1949. Initial reference was there with the Companies Act 1913. The final comprehensive law introduced 1949. It has 56 sections across 5 parts. What are the key features of Banking Regulation Act? आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या डिफरेंस है? आरबीआई एक्ट में बैंकिंग के ऊपर आरबीआई किस तरह से गवर्नेंस करेगा उसके बारे में बात होता है, राइट? मेनली इन द आरबीआई एक्ट it gives the power and purview of Reserve Bank of India over the banks in India, right? But Banking Regulation Act says how banks are governed, what are the rules to open banking license, what are the rules to open and close banks in India, how banks can be licensed, okay, clear definition of banking is given, ban on non-banking companies accepting on-demand deposit, मतलब NBFC ऑन डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, मतलब जिसमें डायरेक्ट आप विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक। ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड, आरबीआई एक्ट में भी ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है एज पर सेक्शन 19, बट किसका ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है? कैन यू टेल मी, कैन यू रिमेंबर yesterday we discussed that as per the section 19 of RBI Act it also says कि the trading is prohibited as per section 19। आरबीआई का ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है, तो यहां पे कौन सा ट्रेडिंग प्रोहिबिट हो रहा है? बैंक का, ठीक है। सेट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट्स आज लॉन्ग एज बैंक्स आर नॉट गेटिंग प्रॉफिटेबल, उनके जितने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं हो जाते, तब तक बैंक अपना प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपने शेयर होल्डर्स के बीच। कवरेज ऑफ बैंक्स रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडियन प्रोविंसेस, ये मतलब हाईलाइट्स है, उसके अंदर हम सेक्शन वाइज देखेंगे। एंड टुडे एडिशनल थिंग which we are going to discuss is the new amendment to Banking Regulation Act which is enacted in December 2024, मतलब जस्ट एक महीने पहले जो नया अमेंडमेंट्स आया है हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंस प्रीवियस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइसेंसिंग सिस्टम बैंक एंड ब्रांचेस सेक्शन 22 में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बैंक को लाइसेंस मिलता है, ये पॉपुलर पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिक बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड मैंडेट फॉर पीरियोडिक रिटर्न्स टू आरबीआई, आरबीआई's right to inspect bank books and accounts, central government can intervene if banks act against depositors' interest, enhanced collaboration between RBI and banking companies, quick process for liquidation और RBI powers to emergency support to banks, यही सब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। Our special batches for Bank of Baroda's 2025 Specialist Officer is going to kickstart very soon. So don't waste your time. The course link and everything is available in the description. And as you all know that in last 1 year there were multiple Bank of Baroda exams, and in all that 95% of selected students are directly from Knowledge East. Go and check out the success stories. And now time is to enjoy this sample session. Our classes is curated in such a way that even if you have a busy schedule, you can still grab it. Our live sessions are designed in the night and in the weekends. Also, if you miss them in 2 hours, the recording will be available. And in first hand, we have a complete pre-recorded batch. And everything is going to start from 5th of January because you have a very less time to prepare for this exam. So do join and now enjoy the class. चलिए, सेक्शन 5 मैंने हमेशा बताया है कि सेक्शन 5 में कि 5B में बैंकिंग का डेफिनेशन दिया गया है। बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब कस्टमर रीपेमेंट मांगेगा आपको देना पड़ेगा, राइट। विड्रॉल इमीडिएट, रिपेबल ऑन डिमांड मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से जब भी कस्टमर विड्रॉ करना चाहे किसी भी 24/7 आप मना नहीं कर सकते। विड्रॉबल भाया चेक और ड्राफ्ट, बैंक के अलावा कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से हम चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? बैंक के अलावा ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जहां से हम पैसा विड्रॉ चेक से कर सकते हैं? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? नोबडी अदर देन बैंक, नोबडी अदर देन बैंक नहीं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में आप वो चेकबुक तो नहीं देते हैं,
वो अपना आप स्लीप से कर सकते हो, ठीक है, राइट। गेटिंग इट, गेटिंग इट। देन बैंकिंग कंपनी कौन है, सेक्शन 5C, नहीं, इफ द एनबीएफसी हैविंग कैपिटल 50 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, ठीक है, 1 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन बैंकिंग कंपनी नहीं, एआई कंपानियन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रांच डिटेल्स, ब्रांच और ब्रांच ऑफिस लोकेटेड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स दैट आर कॉल्ड ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है। बैंक तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सेक्शन 5B के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन सेक्शन 5B में आता है। सेक्शन 5C बैंकिंग कंपनी के बारे में बोलता है, बस वही रिपीट हुआ है एक सुंदर से स्लाइड पे। सेक्शन 6, व्हाट डज सेक्शन 6 डिस्कस, हमने इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में भी ये वाला स्लाइड देखा था। बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज एज पर सेक्शन 6, व्हाट वी कैन डू as a bank, what we can do is on your screens right now. We can borrow money, raise or take money, lend money with or without security, deal in various financial instrument, issue letter of credit, trade in bullion, bullion मतलब gold, deal in stocks, negotiate loans, offer safe deposit services, handle money and securities transmission, act as agents of the government, manage, underwrite and issue state company और municipal loans, ठीक है, गॉट इट, यस, बुलियन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में हम डील कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक्टिविटीज अलाउड है, गारंटी, इंडेमनिटी, प्रॉपर्टी क्लेम्स पर सेटिस्फेक्शन और आज लोन सिक्योरिटी, हम प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है बैंक आज लॉन्ग आज इट इज ए सिक्योरिटी टू ए लोन, एग्जीक्यूट ट्रस्ट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट चैरिटेबल कॉजेस, मैनेज कंपनी प्रॉपर्टीज, डीलर टेक ओवर बिजनेसेस सिमिलर टू दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 6, मतलब सब्सिडियरी कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है, ठीक है, उसमें डील कर सकता है। एंगेज इन एक्टिविटीज प्रमोटिंग द कंपनीज बिजनेस, कंडक्ट अदर बिजनेस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक लीजिंग एंड फैक्टरिंग, ये सब में कर सकता है। मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी इसके हिसाब से आएगा, ये वाला पॉइंट, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रेडिंग नहीं कर सकता। बैंक नेम रेगुलेशन मैंने आपको बताया था, ये भी हमने पहले रिवीजन कर लिया है, ठीक है। ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज बैंक बैंकर बैंकिंग इन इंडिया, बैंक इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। Banks cannot deal in buying, selling and bartering goods directly or indirectly. Banks cannot buy or sell goods on behalf of others. Section 9 says banks can hold immovable property for up to 7 years except if needed for its own use. Also this can be extended for 5 more years with RBI approval. ये एक बहुत कॉमन प्रोफेशनल बैंकिंग क्वेश्चन है। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन, और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट, सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।